How was your celebration to your places? Here, here it's not celebrated. No one is there to celebrate. Here, one society is there. There in news gave that they celebrated. Indian society is there. They Um, celebrated. but you also, like, did you also join? No, no, ma'am. I just saw in the news only there is an Indian community there. They celebrated. Yeah. I didn't join. What about you, Ankita? I don't think that Ankita must be in that traffic. That's why she is not speaking anything. And I believe Deepti must have gone to her kids' school. Did you go or you were at home only? Ma'am, at home only. Okay. Okay. Fine. So I hope you must have seen the videos, all of you, right? And you must have seen the celebrations at different places, at Red Fort also, including our colonies, schools, right? We also celebrated 77th Independence Day this year at our school. And yesterday I came by 8:30 around, 8:15 around actually. And because of preparation, so we had a very big function around, it was about 6 hours function, and we started by 8 o'clock and we finished by 1 o'clock. That was the big function. Big means lengthy function. And you know why these functions are lengthy, guys? Because these functions have students' performances, their singing, dancing, their, debate performances, speeches are there. And we always want each students to come in on front on the stage, and they should, you know, build up their confidence. That's why we give chance to everyone. And in my school, in our branch, we have around 650 students in this branch. And that branch, most of the students, around 5 students took participation. Only parents were the audience. All the students were participants of dance, of debate, of speech, and some were in exercises, mass drill, some were in singing, some were in arrangements, some were in disciplinary committee. All the students from small to big, everybody participated, right? And I think these are the days in schools, especially, where students flourish their talent, correct? Otherwise, academics, test, slip test, exams, mostly they are busy in these things only. These are the festivals when they can, they can check their talent, they can feel good with all these things, correct? Okay. So this is all about today's Independence Day. And okay, that Pooja tried to speak. I liked it. At least 2-3 sentences you spoke. Very good. आज है ना थोड़ा सा मैं पुराने कुछ फोटोग्राफ्स स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक पर। तो हम क्या करते थे पहले, अभी भी करते हैं वैसे, हम हमारे फेसबुक पेज पर वी यूज टू शेयर वोकैबुलरीज। Long back, we shared vocabularies related to this independence, this patriotism, freedom. इन सबसे रिलेटेड हमने एक बार एक vocabulary शेयर की थी। तो मेरे पास वो vocabulary है। I'll share in your group also. And Ankita is saying good evening. Ankita is also saying happy Independence Day. Same to you, beta. तो मैं चाहूंगी कि आप इन vocabs को साथ साथ में you should write also. दो आई विल शेयर, फिर भी लिख लेंगे तो अच्छा है। अगर अभी
खाली हैं, कोई दूसरा काम नहीं है, सो या यू कैन डू दैट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो वी जनरली हैव द फर्स्ट वर्ड कॉल अनफोल्ड करना, झंडा फहराने को कहते हैं अनफोल्ड। और झंडा जो वंदन होता है, जब झंडे को हम ओपन करते हैं पहली बार आज के दिन, तो उसे कहा जाता है फ्लैग होइस्टिंग। इसमें लिखा नहीं है वो वर्ड, HOISTING, HOISTING, फ्लैग होइस्टिंग। छोटे छोटे वर्ड्स पता होने चाहिए। यू नो व्हाट हैपेंस समटाइम्स, वी नीड some words, we want to be the part of discussion और हम चाहते हैं कि हमें वो word पता हो, but many times we don't know that word, right? तो फिर we feel that I should know that word। तो कुछ words हैं जो आपकी help करेंगे to express yourself। तो word है hosting the flag। तो कुछ पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था hosting, hosting का मतलब है HOST, hosting the flag। बट लेटर ऑन व्हेन आई ग्रू अप आई गॉट टू नो कि वो होस्टिंग नहीं है, वो होइस्टिंग है, HOISTING, जिसका मतलब होता है झंडा वंदन करना। और झंडा फहराने के लिए बोलते हैं अनफोल्ड द फ्लैग। अनफोल्ड का मतलब पता है क्या होता है? आपने देखा होगा हम हाथ में पकड़ के झंडे को इधर उधर हिलाते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड अनफोल्ड, राइट? अनफोल्ड, फहराना, झंडा फहराना, राइट? और जो उस वक्त किसी के द्वारा किया जाता है वो होस्टिंग द फ्लैग होता है, और झंडा फहराने के लिए बेसिक वर्ड होता है अनफोल्ड द फ्लैग। नेक्स्ट इज जुलूस। जुलूस का मतलब मार्च होता है, मार्च, मार्च पास सुना होगा आपने, मार्च पास, जुलूस निकालना या और एक के बाद एक अगर जुलूस निकल रहा है तो उसे परेड कहते हैं, है ना? पीपल हु डू मार्च पास वन बाय वन कॉल परेड। नेक्स्ट वर्ड इज, ऊपर ऊपर जा रही हूँ, पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है देश प्रेम, देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म, 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 राइट? अच्छा, जो देशभक्त होते हैं उसे कहा जाता है पैट्रियोट। पैट्रियोट, मैं देशभक्त हूँ, आई एम अ पैट्रियोट, मुझ में देशभक्ति है, देश प्रेम है, आई हैव पैट्रियोटिज्म। अच्छा, हम लोग बोलते हैं ना देशभक्ति वाली मूवीज, देशभक्ति वाले सॉन्ग्स, देशभक्ति वाले स्पीच, उन्हें कहा जाता है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक सॉन्ग, पैट्रियोटिक मूवीज, पैट्रियोटिक स्पीच, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट, कैनन। कैनन का मतलब होता है तोप। किसी ने वर्ड पूछा था, आई थॉट आई शुड टेल। कैनन, कैनन मतलब होता है तोप। तोप की गोली को बोलते हैं कैनन बॉल, कैनन बॉल। अच्छा, भगदड़ हो जाती है, भगदड़ कहीं भी हो सकती है, रैलीज में हो जाती है भगदड़ कभी कभी। कभी कभी जो भगदड़ होती है ना वो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर हो जाती है। जैसे अभी मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ एक साल पहले की, 1 महीने पहले की बात है। इन इंडिया देर इज अ प्लेस कॉल्ड हाथरस, इट्स इन महाराष्ट्र समवेयर। और वहां पे क्या हुआ कि एक महाराज जी का प्रवचन था, जो बोलते हैं ना कथा वाचन, तो वो था। और वहां बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे हजारों लोग आ गए। कथा वाचन एक पर्टिकुलर ग्राउंड में था जहाँ पर एक गेट था, कुछ तो की प्रॉब्लम हुई वहां पे, देयर वाज अ स्टैम्पीड। इतनी बुरी तरह की भगदड़ हुई कि कम से कम 200 लोग मर गए और हजारों घायल हो गए। पता है क्या हुआ? लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए और
इतने सारे लोग थे कि वो उठ ही नहीं पाए। सो उस चीज को कहा जाता है भगदड़, है ना, एकदम से छटपटा कर घबरा कर भागना, उसको भगदड़ कहते हैं, राइट। इसलिए माय फादर ऑलवेज सेज बेहतर है घर में रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि भगवान हर जगह है, राइट। जब आपको लगता है कि आपको अब जाने की जरूरत है, देन यू गो, अदरवाइज इफ नॉट नेसेसरी डोंट क्रिएट द क्राउड, नॉट नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। इस तरफ आ जाइए। शहीद को हम कहते हैं मार्टर, मार्टर। इसमें आर जो है ना, बीच वाला आर, वो साइलेंट होता है, मार्टर। मार्टर नहीं बोलते, बोलते मार्टर। तो लास्ट वाला आर तो है अर, लेकिन बीच वाला अर नहीं है, तो मार्टर, शहीद कहते हैं इनको। मार्टिडम, मार्टिडम मतलब होता है शहादत। कोई शहीद होता है तो उसकी शहादत जो होती है वो लोगों को याद रखनी चाहिए। पीपल शुड ऑलवेज रिमेम्बर martyrdom, martyrdom of a martyr, martyr, right? शहीद हमेशा एक तिरंगे में लिपट कर आते हैं, they are wrapped with tricolor and that is the great honor for them. Next is democratic. Democratic का मीनिंग होता है जनतांत्रिक, which is from the people, by the people, right? Democratic. लोकतांत्रिक भी कहते हैं, सुना होगा आपने वर्ड लोकतांत्रिक, which is related to democracy. Next is, अच्छा, जो गाने वाली टीम होती है ना, उन्हें कॉयर कहा जाता है। जो सिंगिंग पूरा टीम होती है ना, उसे कॉयर कहते हैं। इन स्कूल्स यू रिमेम्बर एक टीम होती थी जो गाने गाती थी, with all 4-5 people, it's called choir. Next is patriotism. Patriotism, ये हो गया है देश प्रेम, देशभक्ति। देशभक्ति गीत के लिए हो चुके हैं पैट्रियोटिक। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, अहिंसा। और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, हिंसा, अहिंसा और हिंसा। नेक्स्ट इज राइट, दंगे, राइट, दंगे। दंगे, यू नो ना, पीपल स्टार्ट फाइटिंग, killing each other, दंगे। अच्छा, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रिवोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। ऐसा विद्रोह जिसमें हम लोग देखेंगे कि विल गेट टू नो, ऐसा विद्रोह जो जिसमें लड़ाइयाँ हैं, बैटल है, वॉर है, लोगों की किलिंग है, लोग मर रहे हैं, उसको रिवोल्ट कहते हैं। फिर एक होता है शांतिपूर्ण तरीके से रिवॉल्यूशन, जैसे गांधी जी रिवॉल्यूशन करते थे। एंड डू यू रिमेम्बर मंगल पांडे, 1857 first revolt started in India by Mangal Pandey. Then Rani Lakshmibai was the part of it. Not only Rani Lakshmibai, Nana Sahab, right? These people were the part of it. वो कहा जाता है विद्रोह, एकदम लड़ाई झगड़ा वाला, right? Revolt. और जो गांधी जी करते थे आंदोलन, that is called revolution. वो भी लिख लीजिए, यहाँ पे दिया नहीं है, revolution, right? नेक्स्ट इज सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान। एक हम लोग है ना कहते हैं, लाइक जनरली हम लोग कहते हैं लोगों में है ना, एक किसी को लेकर जो है एक तरह का अटैचमेंट होता है। पीपल हैव अटैचमेंट, राइट। किसी से बहुत ज्यादा प्रेम होता है,
उस प्रेम को कहते हैं डिवोशन। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, लेकिन जब कहना हो कि किसी से लगाव या प्यार, इज कॉल्ड डिवोशन। डिवोशन, राइट। नेक्स्ट, हम गुलाम थे। एक टाइम था जब हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे। दैट वाज स्लेव, वी वर द स्लेव, वी वर द स्लेव्स ऑफ ब्रिटिश, slaves of British, right? नेक्स्ट है गद्दार। गद्दार को ट्रेटर कहते हैं। गद्दार कोई भी हो सकता है। देश का गद्दार भी हो सकता है, और अगर आपसे किसी ने गद्दारी की है वो भी ट्रेटर। लेकिन यहाँ पे ट्रेटर का मतलब थोड़ा बड़ा होता है ना। कोई डिसऑनेस्ट है, डिसलॉयल है, अलग बात है। मतलब ईमानदार नहीं है। गद्दार बड़ी बात हो जाती है। स्लेवरी को गुलामी कहते हैं। स्लेवरी को गुलामी कहते हैं। लाइक वी हैड स्लेवरी ऑफ 200 years। हमको 200 सालों की गुलामी झेली है हमने। 200 साल बहुत बड़ी बात होती है। मतलब 200 साल मीन्स लोग शायद भूल ही गए थे कि हमारी भी कोई कंट्री है, राइट। इस पीपल फॉरगॉट, और बाद में फिर कुछ इस तरह से हुआ। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ऐसी कंट्री, ऐसा नेशन जो किसी धर्म को नहीं मानता, जिसके लिए सारे धर्म एक बराबर हैं, क्योंकि उसके सारे धर्मों के लोग उसी के अपने सिटीजन्स हैं। सेक्युलर। इसका ऑपोजिट होता है कम्युनल। कम्युनल, कम्युनल जो कम्युनिटीज बना के काम करते हैं। कम्युनल, कम्युनल। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वी हैव इंटीग्रिटी। हम वी आर नॉट द, यू नो, वी आर नॉट डिवाइडेड, वी आर यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है एक होना। यूनाइट का मतलब होता है एक होना। ओके, नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है भाईचारा बोलते हैं जिसको, फ्रेटर्निटी। हम लोग भाईचारे को ब्रदरहुड भी बोलते हैं। राइट दिस वर्ड ऑल्सो। देर आर सम वर्ड्स विच आर नॉट हियर टुडे। ये बहुत पुराने वोकैबुलरी है जो हम शेयर करते थे, 2015-16 की है। फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड, राइट। अच्छा, बेड़ियों को आपने देखा होगा, वी कॉल देम शेकल्स। शेकल्स, शेकल्स मतलब होता है बेड़िया। बेड़िया, यू अंडरस्टैंड ना, चेन, दैट आयरन चेन, दैट इज कॉल्ड शेकल्स। शेकल्स। नारे देते हैं लोग, उसे स्लोगन कहते हैं। नारे मतलब होता है स्लोगन। अच्छा, कोई चीज हमें विरासत में मिली है, इसका मतलब है वो हमारी हेरिटेज है। हम लोग बोलते हैं ना हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय विरासत है, वो उसे कहा जाता है हेरिटेज। नेक्स्ट इज ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है प्रशंसा करना, इनकरेज करना। ग्लोरीफाई करना, चमकाना। अब चमकाने का यहाँ पे मतलब है प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। डिग्निटी मतलब होता है गौरव, सम्मान। डिग्निटी। और बोलना है ग्रेट पॉम्प एंड शो। ग्रेट पॉम्प एंड शो का मतलब होता है धूम धड़ाके से।
We celebrate the birthday with great pomp and show. We celebrate Independence Day with great pomp and show. We celebrate Diwali with great pomp and show. हम लोग जितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सब ग्रेट pomp and show होते हैं, right? Okay. So this is all about the vocabulary here. अब कई जैसे तिरंगे को बोलते हैं ट्राई कलर. इंडिया का जो झंडा है ना तिरंगा, इट्स कॉल्ड ट्राई कलर. ट्राई कलर. यस, ट्राई कलर. अच्छा, इसके अलावा डू यू हैव एनी वर्ड विच यू वांट टू आस्क मी which I did not put here, and you have in your mind in Hindi and you don't know that in English? You can ask me any word related to this. Any word, please let me know. Okay. If you remember anything, ask me. Okay. Now, we have a topic called nuclear family versus joint family. Which is better? Which is need of time today? Which is better today? Are people following it or not? या फिर everybody is trying to make a nuclear family. They don't want to live in joint family. Whatever you have your opinions, I want you to come forward and speak about the topic, right? So there are 4 people in the class today, including me. If I want to give any point, I will definitely add my point. But before that, I want 3 of you take 5 minutes of time to revise your thoughts, and after 5 minutes, we will start the discussion. जो जितना बोल सकता है उतने points आपको add करना है, जितना आप कह सकते हो. In your opinion, what is important? आपके हिसाब से क्या ठीक है? Which is better? A small family means nuclear, or a joint family, which means a big family. Okay, take your time. We'll begin. Okay. Okay. Let's move. So who is gonna speak first? Yeah, who will start first? We have to speak we have to speak about. Hello. Try not to Sorry. speak everything one time. Okay. So first One you to will point try to at give first. only the, what do you call it? Okay. You can start. Okay. Good evening, everyone. Today's topic is about which is better, joint family or nuclear family. So I would like to put forward the point that joint family is better than nuclear family, because when we eat together, we live together, celebrate together, and talk to each other, we more connect with each other.
and when we grow up with our kids and kins, so we more emotionally connect to each other. Uh, uh, and so that's why in joint family, these all things Okay, are done. okay, good. What about others? Yeah, Deepti, would you like to Yes, add ma'am. points? Yes, ma'am. Yeah. Uh, I would like to put forward the point that mm, a, a joint family is always better than the nuclear family. I- In in my opinion, family that eat together, live together, uh, 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 pray together. हम्म, मैम और कुछ भी बोल सकते हैं अलग से हाँ, आपके हिसाब से आप बोल सकते हो. और You can give your point of view. मैम जैसे टॉक टू ईच अदर लव टू ईच अदर बस मैम इतना ही बोल पाऊंगी Okay. Any other points here? Others can also add. नो मैम Okay. Ankita, are you in the condition to speak? Okay. Okay, no problem. Fine. Pooja, do you have any other point? Yes, ma'am. Yeah, please give. Then, in nuclear family, parents are working, so sometimes they can't eat together and spend time together. But in joint family, there is a sense of discipline. So always they eat, means they have sense of discipline. And uh, then in nuclear family, if woman is working, so so she has to leave their child in a creche. So, but in joint family, uh, there are many members who can take care of their child, so they don't have to worry about that. Okay. It's, Any other person? Okay. Any other point, Deepti, you have? यस मैम Yes. Say. I would like to propose my opinion that मैम इसमें ऐसा न्यूक्लियर फैमिली और ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कैसा बोलना है इसमें आपको क्या लगता है कौन सी फैमिली अच्छी होती है आज के हिसाब से, न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली? मैम मेरे हिसाब से न्यूक्लियर और आपको पता भी है क्यों अच्छी होती है? कुछ पॉइंट्स हमारे पास होते ही हैं, है ना? कहते हैं ना, छोटा जी परिवार सुखी परिवार, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली. जी ज्यादा, है ना, ज्यादा लोगों में आपस में प्यार होता है, खर्चे कम होते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं, स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं. वही पॉइंट्स आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स इंग्लिश में कहना है ना? जी न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली with parents and children हम्म. ओके. family can be nuclear joint or a single parent family single नहीं, सिंगल पेरेंट तो वो हो गया, कोई एक ही पेरेंट है. आप तो वो बोलिए कि आपके हिसाब से क्यों अच्छी है, जैसे आपने कहा ना. तो हमने जो वोकैबुलरी दी है ना आपको, वो आपको अपने हिसाब से यूज करना है.
जरूरी नहीं है सारे वर्ड्स यूज किए जाएं, आप उसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। जी। से सी मैम व्हाट नहीं आई, बोलते बन रहा। सो आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा उस चीज को समझ लीजिए। सी इन माय ओपिनियन टुडे, as the world is going too fast, people have, and also महंगाई है ना, inflation has increased everywhere, there is lot of expenditure in the house, correct? And because of जी। those expenditures, the family, it is difficult to spend a lot of money on many people. That's why it is said we two are two. हम दो हमारे दो. We two are two. Why? Because nowadays